जैसे जैसे इवेंट फ्लो होगा वैसे वैसे स्लाइड चेंज होती रहेंगी ताकि यू आर ऑल ऑन द सेम पेज। ठीक है, हम लोगों ने स्पीकर्स तो पहले से डिसाइड कर लिए थे बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ होमवर्क टू बी डन, बट वी हैव एक्चुअली पिक्ड पीपल एट रैंडम, दोज पीपल हु आर गोइंग टू ऑनर Dr. Ankit Shah. So that was not pre-decided. Okay, so we did it now, and one of the criteria was जो जल्दी आया। दूसरा, अभी जब अंकित आएंगे तो अब हमने कहा दिल्ली परिवार का इवेंट है, तो दिल्ली परिवार का इवेंट और भंगड़े वाला म्यूजिक नाउ एटलीस्ट, अगर हम भंगड़ा ना भी डालें बट एटलीस्ट भंगड़े वाला म्यूजिक तो बजा सकते हैं। सो दैट इज व्हाट विल बी प्लेड। He'll come in and once he's seated, we'll get the program going. ठीक है। Second most important part is कि question answers बहुत सारे नहीं रखे हैं, क्योंकि he had initially said that he is going to give us an hour. Okay, it's very difficult. But what we did is कि हमने कहा कि सबसे ग्रुप में पूछा किसी ने क्या क्वेश्चन पूछना है, सजेशंस ये वो, तो सारे क्वेश्चंस का निचोड़ निकाल के 5-7 क्वेश्चंस हमने निकाले और वो भी पूछने के लिए उन्हीं को दिए एट रैंडम जो जल्दी आया। ठीक है, इसलिए डोंट ब्लेम मी इफ यू डिडंट गेट टू आस्क द क्वेश्चन। See, I am a spoiled brat, having lived overseas for a long time. Sorry? No, that I agree. But I am saying the point is, I thought that when we said people who want to help will be there by 4, right? And then we said the event is going to definitely start by 5:30. So even if at 5:30 you had come, you would have a chance. So it was not given at 3 o'clock. Second most important thing is that I want this to be a start. I don't want this to be just Ankit is coming, so we all got together and things like that. So we're going to share with you what we have already got, what's the flavor of the group. We'll share with you what is the way forward. And this is by no means that's it. This is more to open the floor for suggestions one-on-one later, so that we can do the next meeting in a much more better way, more productive way. Jai Shri Ram. We are delighted and grateful that you found the time to spend this evening with us. I'm sure that between all your other engagements and the recent meeting which you had at the school nearby, you must be a little tired. But we played the Bhangra specially for this so that you get invigorated, give some energy. We are going to play the evening through with this slide. And since a lot of people have been sitting for some time, some of them have had the pleasure of having some food. So I think we need one more pump of energy, and that we will do by asking everybody to stand so that we can play the national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जा
मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की Please have a seat. बिहार की Nothing is complete without welcoming a special guest, without some gifts. So अतिथि देवो भवा और पंजाबियों के लिए तो ये और भी जरूरी है. So I will start the evening off by actually giving a few small tokens of our affection on behalf of the entire Delhi Parivar. So what we did is we actually didn't plan this well in advance, but we actually chose some people based on who came early. So I think Gopalji is I think one of our senior most members, and I would request him to honor Dr. Ankit Shah with a shawl. Dr. Urvashi had actually very thoughtfully chosen this book, and we intentionally did not pack it because we wanted him to read the title. Anybody who comes from outside Delhi is complete without going to the Akshardham temple. अभी तो आप वृंदावन होके आ रहे हैं, तो हमने कहा हम अक्षरधाम टेम्पल आपके पास ले आते हैं. जिसका काम उसी को साजे, यही लेके आया जाते. So I think I am fond of speaking, and once I get going, it is difficult to make me stop. So once a professor asked me that what is the characteristics of a good speech, and I was at that point of time in London. So this is a little bit of the whole thing in a Western context. He said, remember, a good speech is like a lady's dress. It should be short enough to retain interest and long enough to cover the subject. Jai Siya Ram, Jai Umapati Mahadev, and Jai Jinendra. So first, I bow to my Guru and parents for whatever I am today. And I know they will always forgive my mistakes and errors made unknowingly. I expect the same from my entire Delhi Parivar. So in our Sanatan, it is always the Devi before Devata. So it's Siya Ram, it's Gauri Shankar, it's Radha Krishna. So a very special welcome to all the ladies. अंकित जी मुझसे छोटे हैं, हालांकि लॉरियल का कमाल है, इसलिए मैं उनको अंकित भी बुला सकता हूं. So I hope that is okay. But I bow to you and I respect you as an acharya who has enriched my knowledge and the knowledge of this entire group. The literal meaning of parivar
is family or household, referring to a group of people related by blood, marriage, or living together under a common roof, simply meaning one's immediate or extended family, right? But there is a deeper meaning to the word parivar. So parivar is not just a group bound by blood, but is the group bound by a sacred bond that embodies love, care, belonging, and a collective well-being. It stands for unity, shared responsibilities, and unconditional support, a micro-reflection of the society. So in Sanatan tradition, the family is often seen as the cradle of moral and ethical values. So ऐसा ही है हमारा दिल्ली परिवार. अब दिल्ली परिवार का ये इवेंट बड़ा ही अच्छा और बड़ा अद्भुत है. वो कैसे? पहले वेन्यू नोएडा की तैयारी हुई, फिर हम दिल्ली आ गए. एंड दिल्ली इज अ मेल्टिंग पॉट. यहाँ पे सब लोग हैं, साउथ से, नॉर्थ से, वेस्ट से, गुजरात से, तमिलनाडु से, सब जगह. बट यू विल एग्री, the original Delhi Walas are primarily from the north, west, and especially old Delhi. Okay? So this venue is in the heart of West Delhi. Old Delhi के बाद यहाँ असली दिल्ली वेस्ट दिल्ली ही है. इसीलिए हमने स्वागत में भंगड़ा रखा. और वो भी वेन्यू कैसी है? वेन्यू वो है जहां पे स्वीटी, पिंकी, नॉट गर्ल्स नेम्स, मिक्की, मोंटू, बंटी, दीपू के सबके फंक्शन यहां हुए. जहां मेन्यू में चाट, दाल मखनी, शाही पनीर, सोया चाप, मूंग दाल हलवा, गुलाब जामुन तो मस्त है. वो कहते हैं और क्या चाहिए. चिल्ला ढोकला इज ऑल्सो मेकिंग एन एंट्री. बैठने के लिए सोफा जरूरी है, क्योंकि सभी आंटी, माताएं और बहनें थोड़ा आराम से बैठ सकें, स्पेशली व्हेन दे आर ड्रेस्ड इन देयर फाइनरी. और कुर्सियां भी ऐसी चाहिए जिसमें कोई थोड़ा सा दुबला हो तो भी आराम से ठीक ठाक बैठ सके. इसलिए असली दिल्ली में आपका फिर से स्पेशल स्वागत है. So it is wonderful to see such an enthusiastic turnout. In fact, अब मैं आपसे सीक्रेट अपने शेयर कर लेता हूँ कि हमारे पहले 125 लोग ही आने वाले थे, वो बढ़ते 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 175 हो गए. ठीक है? So a lot of it is thanks to you. So today we have somebody who really doesn't need an introduction, and it's not just a polite formality. मैं आपको, I think everybody understands the depth of this comment. Ankit's reputation precedes him wherever geopolitics and practical Sanatan wisdom is discussed. I am sure each one of you has at least pushed and explained his predictions in some gathering or in many other WhatsApp groups. Now, on a more reflective note, as Bharat takes confident steps towards becoming a Vishwa-Guru, it is heartening to see how ancient truths like Sanatan hi Satya hai continue to guide our modern wisdom. Gau, Ram और गंगा, ये तीनों हमारे देश की असली पहचान है. तो शहर वाले पूछते हैं गांव में क्या है? मैं कहता हूं जहां गाय रोज अपनी गोल गोल आंखों से देखती है, जैसे पूछ रही हो दूध लेंगे या वाईफाई पासवर्ड. कनेक्टिविटी इज नाउ एवरीवेयर. गांव के बुजुर्ग कहते हैं जिसके पास गाय है वो असली अमीर है. बैंक बैलेंस बाद में देखेंगे, पहले देखो उसके खेत में कितनी गाय घूम रही हैं. एंड हियर आई विल ऐड, the Western definition is different. You know what is the definition of banking? The definition of banking is we know money talks and we listen with interest. तो गांव में और क्या है? गंगा. तो गांव वाले कहते हैं गंगा मैया की सोबत में सुकून है, बाकी तो सब डिस्ट्रैक्शन.
सुबह गांव की सुबह गंगा और गाय के बगैर, और गांव की शाम एक्स्ट्रा कड़ी हुई दूध वाली चाय के साथ गपशप के बगैर पूरी नहीं हो सकती। तो हम गौरव से कह सकते हैं गौ, ग्राम और गंगा यही भारत की असली डीएनए है। जहां गाय है वहां पे अपनापन है, जहां गांव है वहां बचपन है, और जहां गंगा है वहां जीवन है। सो मे ऑल योर डेज बी एज पीसफुल एज अ हैप्पी काउ एट सनसेट। सो इंस्टेड ऑफ बुल मार्केट्स, let's instead talk about real bulls and cows. Why buy stocks when you can buy seeds and actually watch your profits grow? So as Bharat moves towards becoming a Vishwa Guru, it is clear that the future of India will be built on the wisdom, enterprise and resilience of our villages. So without further detours, and before some of you start getting impatient and try to ask a sneaky question, कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है, गोल्ड खरीदे, गोल्ड की प्राइस कहां जा रही है, और करेक्शन अभी तक हुआ क्यों नहीं, तो हम सूरज को दिया नहीं दिखाएंगे और आगे बढ़ते हैं। So let's once again warmly welcome the brilliant mind who helps decode this chaos of our time. अभी थोड़ा सा ठहरना पड़ेगा, अभी उनका बात करने का समय नहीं आया। अब मैं चाहता हूं कि हम अपने दिल्ली परिवार का इनसे प्रॉपरली परिचय करवाएं। तो पहले मैं भूपेंद्र को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा हमारे ग्रुप के कितने मेंबर्स हैं, कौन क्या करता है, कैसे कैसे है, वो थोड़ा उसके बारे में हम सबको बताएं ताकि आप लोगों को भी पता लगे। जय श्री राम। तो जो नंबर्स आपके सामने आने वाले हैं वो हमारी कम्युनिटी का एक एक्सरे है, और हम आज सब यहाँ पे जमा हुए हैं, और हमारी प्रेरणा, हमारे सोचने का ढंग, वो सब कुछ हमारे सामने बैठे हैं। तो अंकित जी और बाकी परिवार के लिए भी हमने अपना जो सफर है वो हनुमान जी के आशीर्वाद से शुरू किया। तो कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में एक कचौड़ी की दुकान पे बैठ के चाय और कचौड़ी के साथ हमने अपना जो है कम्युनिटी को शुरू किया। और उस दिन बहुत मौसम भी खराब था, ह्यूमिड भी बहुत था, पर उन सबको देखते हुए भी हम 18 लोग वहां पहुंचे। वो दिन एक स्टेपिंग स्टोन था हम सबके लिए, बिकॉज वहां से हमें ये दिख रहा था कि यहां से हम बहुत आगे के सफर पे निकल चुके हैं। हमारी जो दूसरी मीट हुई वो द्वारका में हुई, और अतुल जी बजरंग दल से जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है उनको हमारे बीच लाए, और उनके बीच में बैठकर हमें वो इंसाइट्स मिली जो शायद हमें जब लैपटॉप के पीछे बैठे होते हैं तो उसका कोई आभास भी नहीं होता, कि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपना सब कुछ दांव पे लगाकर देश के लिए और धर्म के लिए लड़ रहे हैं। उस प्रेरणा से हमें ये पता लगा कि हमें एक कम्युनिटी बन के ये इंश्योर करना है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है विकसित भारत का 2047 का, वो हम लैपटॉप के पीछे बैठ के तो नहीं कर पाएंगे। तो इस उद्देश्य को हमने पूरा करने के लिए काफी सजेशंस मांगे, काफी विचार विमर्श किया,
कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम अपने देश को और समाज को, और जैसा कि आप हर बार कहते हैं और मैं 1000 बार हर एक से बोलता हूं कि धर्म, जाति, कुल, वर्ण, जो हमारी ड्यूटीज हैं हम उसको कैसे पहचाने और उन सब के साथ हम कैसे जुड़े। तो आज ये परिवार 300, 350 से ऊपर लोगों का परिवार है। तो जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली एनसीआर कोई एक बहुत बड़ा रीजन आता है। तो दिल्ली को अगर हम केंद्र में रखते हैं तो उसके रेडियस से अगर आप मोटा मोटा 30 किलोमीटर देख लें तो ये परिवार उस पूरे 30 किलोमीटर को मिला के बना हुआ है। और हमें इस तरह के लोग मिल रहे हैं जो हमने शायद कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरह के एक्सपर्टीज हमारे समाज में है और हम लोग उसको जानते तक नहीं है। तो अब हम जुड़ना शुरू हुए हैं। कुछ नंबर्स आपके सामने आएंगे। ये डाइवर्सिटी की पाई चार्ट है। देखने में तो साउथ दिल्ली का जिम वाला ग्रुप लग रहा है। इसमें मेल डोमिनेशन आपको ज्यादा दिखेगा, पर हमारी जो माताएं बहनें हैं वो नारी शक्ति है, मल्टीटास्क कर सकती हैं। तो अभी के लिए जो नंबर्स हैं आई थिंक हम उसको और इम्प्रूव करेंगे और धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर हम स्किल कैटेगरी की बात करें तो जैसा कि आप हमेशा कहते हैं, सबसे ज्यादा आपके बातों से प्रभावित आईटी वाले हुए। तो आप देखिए आईटी वाले सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मैं खुद साइबर सिक्योरिटी में काम करता हूं और पूरा दिन ये सोचता हूं कि देश कंपनी के डेटा को वायरस से कैसे बचाया जाए, और शाम को देखता हूं जो हमारे सिविलाइजेशन में वायरस लगा हुआ है उसको कैसे बचाया जाएगा। तो आपसे सुन के, आपके विचारों को सुन के हमें लगता है कि ये जो तरीका हम लोग ले रहे हैं इससे हम जरूर एक एंटीवायरस बना लेंगे अपने देश के लिए भी और समाज के लिए भी। जब हम इंटरेस्ट वाले बार चार्ट को देखते हैं तो आप उसमें देखेंगे कि ये एक पहली कम्युनिटी है जिसमें सभी लोग लर्नर्स हैं। जैसा कि आप हमेशा बोलते हैं कि आपको, आपके साथ वो लोग जुड़े जो सीखना चाहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव अप्लाइड हियर, हु आर सिटिंग हियर, दे आर ऑल लर्नर्स। Now I will request Amit to share the plan of action and what all we have done up till now and where we want to go from here. अब हमारा जो ऑनलाइन स्ट्रक्चर है, अब जो हम आगे यहाँ से बढ़ना चाहते हैं, जैसे हमने ग्रुप बनाया, स्टार्ट किया, अब हम यहाँ से फॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ना है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि हमारा जो एसोसिएशन की तरफ हम इसको डेवलप कर सकें। अच्छा, और अगर जैसे आप देखेंगे हमारे की ग्रुप मेंबर्स हैं, एग्रीकल्चर हमारा मेन फोकस रहा है इसके अंदर। हमने लोगों से विचार भी जाने, सब लोगों का विचार भी एग्रीकल्चर की तरफ ही झुकाव था। उसके बाद हमने कुछ और सेशंस, नॉलेज सेशंस भी किए, कुछ जैसे डॉक्टर मेडिटेशन का किया था एक सेशन। तो जब भी हमारी मीट हुई है उनके अंदर हम लोगों ने कुछ ना कुछ एक्टिविटी इस तरह की करी है जो हमें हमारे कल्चर से, हमारे रिलीजन से जोड़ती है। अब इसके बाद जैसे हमारा सब ग्रुप, हमने लोकल नेटवर्क बनाया जिसमें हमने गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद और दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ सबको इंटरेक्ट करके जो जैसे बजरंग दल यूनिट्स की सिस्टम से हम इनको जोड़ सकें। तो अभी क्या है, जैसे हमने एक गोल्डी जी से हमारी बातचीत है, उन्होंने मेंशन भी किया था। तो गोल्डी जी दिल्ली के वो हैं, तो वो काफी हायर लेवल पे हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट प्लान क्या है कि जैसे आप अपने लोकल एरिया में, गुड़गांव में, नोएडा में, तो वी विल कनेक्ट जो लोकल वहाँ के बजरंग दल के मेंबर्स हैं, आप उन लोगों को वहां से उनसे मीटिंग करवा सकेंगे। तो अतुल जी हमारी इसमें हेल्प करेंगे जो इससे आगे बढ़ाने का है। और दैट विल हेल्प अस कि हम तो एक लोकल, हमारी एक फैमिली जो हमारी कम्युनिटी है वो एक लोकल सिस्टम से कनेक्ट हो पाएगी। बिकॉज इट्स बहुत हेल्पफुल होता है कि अगर आप लार्ज स्केल पे कर रहे हैं और अगर आप लोकली बंदों से कनेक्टेड हैं, दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कंफर्ट एंड इट हेल्प्स एवरीबॉडी। So the very first step when you form a structure
or an association or a group is to give it a name, right? So our journey of keeping a name, in fact, I would like you to keep it in mind that this group started formation in August, September. We are in the middle of November, so it's only thanks to everybody's participation and support that we have achieved so much so quickly. So I think, again, I would like Amit to tell us the story of how the name was formed. And once we reach the conclusion, I would like you to unveil and sort of, be part of the naming of this organization. All right. So we'll go to the next slide. So there's a surprise over there. So we will talk about what all things we have gone through. So हमने कोशिश करी कि जो हमारा नाम हो वो हिंदी में हो, वो बहुत जरूरी है, एक इंग्लिश नेम की तरफ ना हो, और हमारी सनातन वैल्यूज से वो कनेक्ट कर सके हम उसको। दूसरा, इट शुड बी इजी टू प्रोनाउंस एंड याद भी रख सके उसे अच्छे से, और यूनिवर्सली एप्लीकेशन, मतलब हर जगह हम उसको 10 जगह मल्टीपल जगह उसको यूज भी कर सकें। अब जब हमने सब लोगों से इस पे सलाह मांगी, सब लोगों ने हमें नाम दिए, तो अराउंड 80 के अराउंड नेम्स हमारे पास निकल कर आए जो सब लोगों ने सजेस्ट किए। उसमें से 40 हमने इसे ड्रॉप कर दिए क्योंकि सम ऑलरेडी एग्जिस्टेड थे, सम आर नॉट एक्सेप्टेड बाय एमसीए गाइडलाइंस बिकॉज सम नेम्स वर देयर व्हिच वाज नॉट एक्सेप्टेड। फाइनली हमने नेम शॉर्टलिस्ट किए और फिर हमने डॉक्टर अंकित शाह को वो नेम दिए थे, और उन नेम्स में से डॉक्टर अंकित शाह ने एक नेम फाइनलाइज किया। वो अब हम आपको ये 3 नाम थे जो हमने डॉक्टर अंकित शाह को भेजे थे, धाराकोश, विद्याकोश एंड अमृत कोश। तीनों के अपने अलग अलग रेलेवेंस हैं, जिसमें हम जब हम धाराकोश की बात करते हैं, हम एक स्ट्रीम की बात करते हैं, बिकॉज हम इस कम्युनिटी को, इस फैमिली को हम एक स्ट्रीम की तरह आगे लेके जाना चाहते हैं कि हम एक कंटिन्यूअस फ्लो में चलते रहें और हम इसको और आगे एक्सपैंड कर सकें, वो हमारा मेन फोकस है। और 3 नाम्स में से विद्याकोश जो है वो एजुकेशन की साइड, अगर हम इसी धाराकोश के अंदर कुछ करना चाहें तो वो भी उसमें काफी बेनिफिशियल है। अमृत कोश जो हमारा है वो इट्स मोर फ्रॉम द positively timeless, but more to do with, we can also add the Gaudhan and everything over there in that part later. So अब मैं Ankit Shah ji. So I think Ankit had suggested that we call this umbrella organization as the Dharakosh Foundation, and सबसे बड़ी बात है कि कोश का मतलब ट्रेजर, तो जो हमारे परिवार की प्रेरणा और ट्रेजर है, उनसे बढ़िया कौन हो सकता है हमारे लिए नाम रखने वाला। तो इसका एक सिंबॉलिक वे में हम उनसे लाइटिंग ऑफ द लैंप करवा के इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। नेम हैज बीन अप्लाइड इन द एमसीए, 4-5 दिन हो चुके हैं, पर अभी तक उसका अप्रूवल नहीं आया है। Big round of applause. And thank you, Ankit. I took the liberty of getting this logo designed by a friend of mine who works for a design house in London. So अभी उसने तो इंग्लिश नहीं बनाया है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा हिंदी में भी परिवर्तित करेंगे।
भाग घूम फिर के मेरे पास ही आएगी. So I think what I've done is I've actually spoken to a lot of people individually. From 370 people to interact is very difficult. So we requested people who would like to volunteer their time, some expertise. So उसमें से around we received about 70 people who came forward. So we now have a volunteers group. Okay? Then उसमें से जिन लोगों ने बहुत जोर से नारा लगाया, थोड़ा सा रिच समाजवादी पार्टी वाला भी था, कई लोग आगे और नहीं आए. तो उसके बाद फिर हमने देखा कि जो रेगुलरली कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत टाइम दे रहे हैं, सब करते हैं, तो उनको हमने एक की कोऑर्डिनेटर्स ग्रुप में डाला, एलिवेट किया. तो जिसमें अभी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 20-22 लोग हैं. दे हैव रियली वर्क वेरी हार्ड. ठीक है, बाद में वोट ऑफ थैंक्स तो अतुल ने देना है, लेकिन मैं अभी इस वक्त आप सबके माध्यम से आई वांट टू गिव अ वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू दिस कोऑर्डिनेटर. So what's the way forward? And collectively this has been worked out. It's not just one person's vision, but idea is कि हर बंदे को कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है. क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो दिस अ जर्नी, बट एवरीबडी इज इंटरेस्टेड. आई थिंक फ्रेंकली rather than take on too much कि भाई ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ये हो नहीं सकता. तो अगर कोई एजुकेशन के फील्ड में करना है तो थोड़ा सा उस एग्रीकल्चर के साथ जोड़ के कर लो. जहां कहीं कुछ करोगे वहीं रूरल एजुकेशन के लिए, वहीं पे रूरल हेल्थ केयर में कुछ काम कर लो, तो वो एक हो गया. सो आपके धारा कोश का पहला सब चैप्टर विद्या कोश अपने आप पैदा हो गया. ठीक है. और दूसरा, हम इस चीज के लिए कि हम लोग इसमें जुड़ के मिल के काम कर सकें, तो वी आर नाउ इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ वेन्यू. अब वेन्यू हर जगह नहीं मिलती, तो सेंट्रल पार्ट में दिल्ली में वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ स्कूल. तो स्कूल के पास 80% इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑलरेडी है, और कुछ नहीं तो ब्लैक बोर्ड और डेस्क तो है. तो वो हम ढूंढ रहे हैं. अगर जैसे वो फाइनलाइज हो जाएगा तो देन वी विल स्टार्ट हैविंग रेगुलर मीटिंग्स देयर, लार्ज ग्रुप्स, स्मॉल ग्रुप्स, वर्किंग ग्रुप्स, जैसा भी होगा, पर एटलीस्ट एक जगह हो जाएगी सबके मिलने के लिए. सो आई थिंक द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज दैट अगर हमने सारे अंकित शाह परिवार, इफ आई मे यूज दैट वर्ड, को इकट्ठा किया तो 370 लोग जुड़े. ये तो सबको डॉक्टर अंकित को जानते ही. पर अगर दिल्ली जैसे शहर में रह के अगर हमने इसमें और 1500 लोग नहीं जोड़े तो फायदा नहीं. सो फर्स्ट टास्क वी विल डू इज दैट वी विल कंपाइल अ प्रेजेंटेशन ऑफ द आइडियाज व्हिच वी हैव लर्न्ड फ्रॉम अंकित. We will need some help from you. You may have some ready-made presentations. You may have something that you could share, make our life a little easier. But I want to make it into a story. जो उसको पढ़े उसको ये नहीं बोलना पड़ेगा कि तुम सत्तोलॉजी के जाके 2022 के सारे वीडियो देखो. क्योंकि some people are well intentioned, they want to watch, but 1.5 घंटे का वीडियो देखने में थोड़ा टाइम चाहिए ना. बीच में इतने सारे फेसबुक के लाइव मिस हो जाएंगे, इंस्टा की कोई रील मिस हो जाएगी, कैसे हो सकता है? So what we do also is that we reach out to like-minded institutions, because what is Dr. Ankit teaching us? Geopolitics, it's finance, it is what is going to affect the economy. So as a first step, I have spoken to the president of the Institute of Chartered Accountants of India, and he is going to call each of his north, south, east, west chapters to organize special events only for learning from Dr. Ankit Shah. And we are trying our very best that there is a event which happens in the end of January this year, which is called WOFA, the World of Accountants, in which 15,000 delegates come from all over the world. And we are lobbying very hard to make sure that Ankit gets a speaking slot there. Okay, so you should reach out to other organizations you know. Before reaching out, I think you talk to us. CA हैं, CS हैं, lawyers हैं. Maybe there are other good Sanatani societies like maybe the Chanakya Foundation, maybe something else. जिसमें 300, 400, 500 लोग हैं. तो हम लोग अपने वॉलंटियर्स को जो इस नॉलेज को अच्छी तरह से समझ चुके हैं, एब्जॉर्ब कर चुके हैं, वो जो स्क्रिप्ट हमने बनाया है उसको जाके वहां पे हम दिखाएंगे. और जहां पॉसिबल होगा
वहां पे भी रिक्वेस्ट डॉक्टर अंकित टू जॉइन एटलीस्ट बाय वीडियो कॉल, तो he can just take some questions live. So his participation will be there without making him travel all the way. But वैसे मुझे लगता है कि आप बुलाओगे तो भंगड़ा भंगड़ा सुनने के लिए आ जाएंगे. Secondly, every meeting has to be made interesting. वरना क्यों आएगा 30-35 किलोमीटर चल के? तो every meeting we have, we will select one expert. It can be somebody from within the group. It can be somebody who's invited from outside. So let's say we have enough IT people here. So why can't some of them get together and make a presentation on AI? What are the tools we can use in daily life which could make our life easier? वो सारे WhatsApp पे चलते रहते ना 99 रुपीज की क्लास, अब पता नहीं किसने देखा. उसके बाद लेने के बाद कोई बंदा मिल गया एक बड़ी सी मीटिंग में, किसी ने बोले सीखने को कुछ मिला नहीं. तो हमारे पास जब अपने लोग हैं तो हम उनसे सीख सकते हैं. Correct? So I think there are members here. I think Gopal ji deserves a special mention. Last time की मीटिंग जब नोएडा में हुई थी तो इन्होंने हमें बताया कि कैसे इन्होंने टेरेस के अंदर ही बड़े बड़े फार्म बना दिए. तो अब कोई बंदा कहे हाँ यार ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग है, तो फिर इनको खड़ा करेंगे, बकायदा प्रेजेंटेशन करके बताना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप सिखाना पड़ेगा. हाँ जी, अब आ रही है, तो तैयार है. ठीक है, तो इस तरह से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके हम आगे बढ़ सकते हैं. There is one gentleman here who is very passionate about Ayurveda. So it's not generally talking it's the largest thing, it's going to become the biggest thing. No, I want to have something practical. Let's get one good Ayurvedic doctor to come and tell us, okay, ये 5 चीजें करनी है आपने, लाइफ ठीक हो जाएगी. So something like that, so that we are all coming and looking forward to those sessions. So now I think we have a few questions for you, but what we did is we did not just leave it as an open house. हमने सारे questions distill करके 5-6 select करे हैं, तो हम बारी बारी से आपसे वो पूछते जाए. नमस्ते. अंकित जी, आप एक विजनरी भी हैं और यू आर वेरी इंट्यूटिव. So I know you have a vision for the world, for India, but I really want to know, what is your vision for collecting such different people under one umbrella? What do you see us doing as? So what do you want us to create? सबसे पहले जय श्री राम सबको. So as much as you people are seeing the faces, I am also seeing the faces for the first time. Okay. So प्लान ये है हमारा, एटलीस्ट द मोटिव इज कि एक दूसरे को एम्पावर करना है, और जो कुछ भी रॉन्ग प्रोपेगेंडा चल रहा है या एंटी भारत एक्टिविटी चल रहा है, एंटी धर्म एक्टिविटीज चल रहा है, उसमें हमारे एडवांस में अवेयरनेस आए, एटलीस्ट विद इन अवर ग्रुप्स इफ नॉट आउटसाइड. और जितना हम अवेयर होंगे हम दूसरे लोगों को अवेयर कर पाएंगे, हमारी फैमिली मेंबर्स, एक्सटेंडेड सर्कल को. दूसरा, इकोनॉमिकली भी एम्पावर होना है. सो वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग के अभी आप क्या कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, दैट्स फाइन, बट इवेंचुअली एटलीस्ट हमारे जो एक एक सिटी में ग्रुप्स बन रहे हैं, दे शुड हैव अ सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल एट द एंड ऑफ से सम पीरियड ऑफ अ सिग्निफिकेंट टाइम फ्रेम, 18 months, 24 months, right? You should not be dependent on a boss. This is what I am trying to say. और वो एम्पावरमेंट के लिए एक दूसरे से जितना लर्निंग हो सके, वो लर्निंग के सिवाय you should be able to eventually pass out a message to the rest of the world कि यहाँ पे हमने जो लर्निंग ली है उससे जो लाइफस्टाइल में चेंजेस आए हैं, उससे हमारे हेल्थ में जो चेंजेस आए हैं, उससे हमारे मेंटल पीस में जो चेंजेस आया है, that also replicates elsewhere. Okay? Because lot of, जब मैं फेक न्यूज की बात कर रहा हूं तो उसको मैंने 2 शब्द में बोल दिया, फेक न्यूज. बट हाउ मच दैट फेक न्यूज इज स्पिलिंग ब्लड इन आवर ड्राइंग रूम्स. फालतू का वर्ल्ड वॉर 3 बोल के द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, छोटे बच्चे देख रहे हैं टाइटल वर्ल्ड वॉर 3, बेचारा पैदा नहीं हुआ है, उसको अभी से मार रहे हो, तो वो भी बेवजह है. देयर इज सम रेलेवेंस तो समझ में भी आए. सो दिस काइंड ऑफ अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड कि आप लोग एम्पावर होके बताओ दूसरों को कि ये ऐसे ही चल रहा है.
there is nothing positive, nothing solid about it. ये एम्पावरमेंट ज्यादा जरूरी है. ओके, इफ यू हैव मेंटल पीस तो बाकी का सब कुछ तो अचीव हो ही जाना है, राइट? अब एक छोटा सा बच्चा कोई टेस्ट में फेल होने से सुसाइड कर रहा है. ये ऐसे तो इंसिडेंट्स भारत जैसे देश में नहीं होने चाहिए, जहां पे हम क्लेम कर रहे हैं कि धर्म हैज दैट मच एनलाइटनमेंट. तो ऐसे राष्ट्र में तो ये नहीं होना चाहिए. सो विद इन अवर फैमिलीज, विद इन कम्युनिटीज हम क्या कर सकते हैं? दूसरा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वी हैव टू बी प्रो बीजेपी कंपल्सरी. This is not a BJP gathering, right? But we should be able to make out the difference between good and lesser good, and the bad and the worse. इतना एम्पावरमेंट होना चाहिए कि आपको फर्क करना आए कि कोई एक इमोशनल टॉपिक पे पॉलिटिकल डिसीजन लेने से पहले हम ये सोच लें कि बाकी का ऑप्शन क्या है. ये इतना अवेयरनेस तो होना चाहिए, राइट? So, one of the activity which I would like to give to this group, and this activity should not turn political. क्या करना है? जितने हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं, उनमें से बच्चे, उन फैमिलीज के बच्चे, कौन से बच्चे? 18 साल की कम की एज के बच्चे. एक्टिविटी बता रहा हूं ग्रुप मेंबर्स के लिए. जितने हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं, उन फैमिलीज के बच्चे जो 18 साल की कम की एज के हैं, जो लोकेशंस हमने यहाँ पे टैग किया कि दिल्ली का नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ और बाकी के आसपास क्या एरिया, इनके हिस्टोरिकल रेफरेंसेस लेके आओ. क्या ओरिजिनल नाम थे इनके? ये बच्चे जाके चीफ मिनिस्टर को सबमिट करेंगे कि क्या नए नाम होने चाहिए. सिर्फ बच्चे जाएंगे. समझ रहे? दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी दैट आई एम गिविंग. अभी का नाम क्या है? ओरिजिनल हिस्टोरिकल नाम क्या था, क्या होना चाहिए और उसका क्या लॉजिक है. ओके, कंपाइलेशन होगा कि दिल्ली के ये रोड का ये नाम है, हिस्ट्री में ये था, नया हम क्या सजेस्ट कर रहे हैं. और सिर्फ बच्चे जाएंगे जो 18 साल की कम की एज के हैं और चीफ मिनिस्टर को सबमिट करके आएंगे ऑफिशियली, without any adults going. This has to become a non-political movement. Clear? तो न्यूज में या मीडिया में क्या जाना चाहिए कि बच्चे आए हैं डिमांड लेके और हिस्ट्री पढ़ के आए हैं. ऐसे हवा में नहीं बात कर रहे. दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी फॉर द ग्रुप. इससे क्या होगा? जो रीजन्स बताए जा रहे हैं कि यहाँ के इतने एरियाज के कम्युनिटी ग्रुप मेंबर्स हैं, वो फैमिलीज खुद भी शॉक हो जाएगी ये जान के कि हिस्ट्री क्या थी, एटलीस्ट उनके लोकेशन की, उनके लेन्स की, उनके रोड्स की, राइट? दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी. सेकेंड, क्योंकि एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट आ रहा है सबका, फॉर्मली यू आर मेकिंग इट एन एंटिटी. इवेंचुअली व्हाट वी वांट के विद इन अ पीरियड ऑफ 2-3 years एक एग्रीकल्चर लैंड का पार्सल लेके एक्चुअल कुछ करके दिखाएं ग्रुप कम्युनिटी मेंबर्स. एंड वी वांट जितने मेंबर्स हैं सबका इक्विटी होना चाहिए. डजंट मैटर के लैंड का क्या साइज है, डजंट मैटर. ओके, 1% मिल रहा है, 1% इक्विटी, दैट्स ऑल्सो फाइन. बट रियल प्रोडक्टिविटी वी वांट टू प्रूव कि हम कर सकते हैं. एंड देन वी कैन रेप्लिकेट फर्दर, मे बी एक्सपांड द लैंड, व्हाटएवर. But let us have some experts, agriculture experts. One of the Indic person that I know is Ravi Singh Chaudhary. जिन्होंने किसी ने अगर बुक्स पढ़ी हो उनकी, ऋषि इंटेलिजेंस, चाणक्य पे भी बुक है उनकी, तो मे बी वी कैन कॉल हिम और वो गाइडेंस भी देंगे. और वृक्ष आयुर्वेदा पर भी उनकी बुक्स हैं, बुक्स भी पढ़िएगा, उनकी बहुत अच्छी बुक्स रहती है. रवि सिंह चौधरी, यू कैन कॉल देम. Maybe they will guide the people and then you can have a parcel outside. Obviously this is going to be very costly somewhere around this region, लेकिन outside you can have, और एक joint cooperative बनाओ और let it be a commercial model. Okay? Eventually 3 साल बाद एक और आउटकम भी हो सकता है. वो ये है कि
ये कम्युनिटी के फैमिली मेंबर्स जो चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, क्या वो चीजें एक दूसरे के यूनिट से ही खरीद सकते हैं? इज दैट अ पॉसिबिलिटी? इस पर वर्क करना पड़ेगा. सो यू हैव टू डू द ड्यू प्रोसेस. ओके, बट टीम मेंबर ने ये भी एक ऑब्जेक्टिव लेके चलना चाहिए कि हमारी जेब से जो पैसा जा रहा है, क्या उससे कोई लोग हथियार खरीद रहे हैं? वाई आर वी फंडिंग देम? ओके, या कंपनीज को दे रहे हैं जो ऑटोमेशन करना चाह रही है, जॉब नहीं देना चाह रही. वाई कांट वी एम्पावर ईच अदर? तो इसका भी स्किल के साथ इसका भी मैपिंग हो कि इसमें से ग्रुप्स में से कितने एंटरप्राइजिंग वाले ऑलरेडी हैं, क्या उनको सपोर्ट किया जा सकता है बाय गिविंग द ऑर्डर्स. तो इवेंचुअली विद इन 3 years द आइडिया इज कि ग्रुप सेल्फ सस्टेनिंग लेवल पे आ जाए, जॉब पे डिपेंडेंट ना हो. ये ऑब्जेक्टिव लेके चलना है 3-4 साल के गोल के लिए. ओके, दैट्स इट. जय श्री राम. अंकित जी, दूसरा क्वेश्चन, हमारे इंडिया के अलग अलग पार्ट में अभी रीजन में हमारी कम्युनिटीज आ रही हैं, तो हम उन कम्युनिटीज से, उन ग्रुप से, उन परिवारों से बेंगलोर में, मुंबई में, उनसे हम क्या सीख सकते हैं? तो मे बी एग्रीकल्चर, मे बी एनी अदर एस्पेक्ट विच दे आर हैविंग डीप एक्सपर्टाइज, और कोई और एक्सपर्ट आप हमें सजेस्ट करना चाहें? करेक्ट. सो अभी जितने हमारे कम्युनिटी ग्रुप सिटी वाइज बन रहे हैं, उसमें बेंगलुरु इज द वन जो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी का दे आर रजिस्टरिंग फॉर इट एंड दे आर गोइंग फॉर इट. तो मतलब रियल कमर्शियल लाइन पे ग्रोइंग थिंग्स एंड स्टफ लाइक दैट. तो उनके एडमिन्स को बुला के मे बी यू कैन हैव सम गिव एंड टेक और इन्फॉर्मेशन का नॉलेज शेयरिंग, व्हाटएवर, दैट इज व्हाट यू कैन डू. There is another group which is in Pune, right? The Pune group is still in the process. They have submitted कि क्या-क्या activities करनी है. So not necessary कि हम सबको cut copy paste type बनाए. So whatever naturally coming from the members, कि this is how we can go about. Based on what we are talking is Sanatan economics model, right? Self-sustaining, sustainable formats of living life. तो उस हिसाब से दूसरे ग्रुप्स के एडमिन्स के साथ भी आप इंटरेक्ट कर सकते हैं. अतुल जी, आई विल कनेक्ट विद दोस एडमिन्स एज वेल. थैंक यू. अंकित जी, हमने इसमें क्या किया है कि एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इट बिकम्स अ चैलेंज. लाइक व्हाट्सएप ग्रुप्स, इट्स वेरी इनएफिशिएंट. मतलब एक के बाद चैट आती जाती है, समझ नहीं आता. So we have actually already identified an Indian homegrown software company who is doing community software, and they have already successfully implemented it in colleges. So उनके फाउंडर से मेरी कॉल हो गई है, बात हो गई है. हमने अपने भूपेंद्र जी को, बाकियों को, उनसे जो IT एक्सपर्ट्स हैं उनको लिंक किया है, and they have agreed that they are willing to even customize it for us. So maybe we'll run a pilot. If it is good and successful, we will then introduce it through you to other groups. Certainly. Because then maybe that software could become a huge community link all over India as well. Works. Very good idea. नमस्कार अंकित जी. मेरे क्वेश्चन का आंसर आप ऑलमोस्ट दे चुके हैं, लेट मी जस्ट आस्क अगेन. एग्रीकल्चर हैज अ लॉट ऑफ ब्रांचेस. एवरीबडी इज इंटरेस्टेड. सम पीपल से हम FPO बना लेंगे, सम पीपल से हम वर्मी कंपोस्ट का कर लेंगे. So, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है. Can you really be a guiding light and go step by step, because we are a lot of us are really interested in agriculture with no knowledge. Correct. ठीक है. So we want कोई guiding light हो जाए, FPO बनाए या क्या करें, इधर से ले सेंट्रल पॉइंट पे वेयर हाउस बनाकर भेजे. इस तरीके की थोड़ी जो महीन इंफॉर्मेशन है, वहाँ पे गाइडेंस जो चाहिए. कैन यू प्रोवाइड अस? So one of the thing is I already named the expert Ravi Singh Chaudhary, right? Second, what we have to do is, जहां कहीं भी, first of all, don't go for dispersed buying of land parcels. I can understand Delhi must be rich, and you might begin your individual efforts on your way, in your own way, instead of going for individual efforts. क्योंकि एग्रीकल्चर में क्या होता है, जितना ज्यादा कंसोलिडेटेड लैंड होता है, उतना ज्यादा आपको आउटपुट आएगा. यील्ड जिसको बोलते हैं, right? So instead of if you are planning something, don't go for individual planning.
ठीक है, I can understand that some might have that kind of potential, right? She already has. Okay. So जहाँ कहीं भी आप लैंड का पार्सल बाय कर रहे हो, even if you have suppose already bought it, or somebody if already has agriculture farm working with them, तो उसके आसपास का एरिया हमारे ग्रुप्स के लिए let us try to make it possible. If that is a cooperative format within everybody would like to join in, तो उसी लैंड पार्सल के आसपास, right? Somebody already having, उसी के साथ अगर कंसोलिडेट हो पाए, that is also a format which can be worked on. अब उसके अंदर जो फर्टिलिटी होता है और जो क्वालिटी का वाटर सप्लाई चाहिए होता है, लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से उस प्रकार से क्रॉप आता है. क्रॉप्स की भी साइकिल होती है बेस्ड ऑन व्हाट इज द सॉइल हेल्थ. ठीक है, सो देयर आर सम सॉइल व्हिच कैन गिव 2-3 क्रॉप्स इन अ ईयर, right? Then there are some soil where you don't want to do the soil work, maybe vertical farming करना है, ऐसा कुछ. So let the expert come and guide you on that, but see to it कि individual efforts ना करें. Okay, because community form करने का मतलब ही ये है कि everybody needs to participate in this at some level. Okay, so go about in a consolidated way, whatever that you are doing. ठीक है. नमस्कार अंकित जी, मेरा नाम धनंजय श्रीवास्तव है. 2023 में मैंने सोचा था कि काश आपसे मिल सकूं और आज कुदरत में था और हम लोग मिल रहे हैं. थैंक यू फॉर दैट. मैं थोड़ा स्ट्रेटजीज पूछना चाहूंगा आपसे कि लो बजट फाउंडर्स और स्टार्टअप्स जो होते हैं उनको क्या ऐसे तरीके यूज करने चाहिए जिससे जिनके पास फॉलोइंग नहीं है या बजट नहीं है, या जो बजट नहीं है और फाउंडर्स जो बिल्कुल लोअर लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? सोशल मीडिया पे भी फॉलोइंग नहीं है या फिर उस तरह से कंटेंट क्रिएटर, राइट? फॉर कंटेंट क्रिएटर फाउंडर्स ऑल्सो बिजनेस. So you are talking about seed funding for a startup, right? तो सीड फंडिंग का सबसे पहला प्रायोरिटी ये होता है कि खुद का सेविंग्स या फैमिली मेंबर्स का सेविंग्स. दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी. ये हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि सक्सेस हो जाने के बाद देयर विल बी मेनी पीपल जो ऑलरेडी स्टेक ले चुके होंगे एंड यू वुड नॉट लाइक इट इवेंचुअली हैपनिंग. So always source it from within your family members and the friend circle. That should be the first priority. कोई भी स्टार्टअप के लिए. सेकेंड, उसमें जाने से पहले जैसे मैं वीडियो में भी बताता हूँ कि पहले एक फिक्स्ड इनकम का सोर्स होना चाहिए. उसके बिना एंटरप्रेन्योरशिप में जंप नहीं करने का है, राइट? बिकॉज मे बी यू आर फाइनेंशियली रीच, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. आई एम सेइंग वो फायर ही नहीं आएगा काम करने का. ओके, और फिर आफ्टर सम मंथ्स यू विल रन आउट एंड आपको लगेगा कि आई एम जस्ट वेस्टिंग टाइम. ये नहीं होने देने के लिए भी जरूरी है कि एटलीस्ट 2-3 घंटे का प्रोडक्टिव वर्क, एंड योर माइंड थिंक्स प्रोडक्टिव वर्क मीन्स दैट ब्रिंग्स कैश. दिस इज हाउ आवर माइंड्स आर ट्रेन्ड. ओके, इंस्टेंट कैश आई एम टॉकिंग. लोगों का भी यही है कि इंस्टेंट कैश मीन्स प्रोडक्टिव वर्क, विच इज एक्चुअली रॉन्ग, बट एनीवेज. सो फर्स्ट 2-3 आवर्स का ये पहले ढूंढना है किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप में जंप होने से पहले. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं रेजिग्नेशन डाल के आ गया हूँ, कल से मैं कुछ स्टार्ट कर. नहीं, नो, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. मैं कर चुका हूँ. हाँ, ऐसे नहीं होता है. एंड स्पेशली इफ यू आस्क योर मदर एंड सिस्टर, हाँ बहुत अच्छा आइडिया. So, no monetary decision to be asked to mothers and sisters. They are very emotional. They will say yes. Only when you go to a man, he will slap you. So, you need to understand what to ask to whom. Okay. So, first thing, before putting any resignation or any drastic steps, वो एंटरप्रेन्योरशिप एक लेवल पे आ चुका होता है, उसके बाद आप रेजिग्नेशन डालते हैं. ठीक है, टीम बन चुका होता है, ब्रेक इवन पॉइंट एटलीस्ट दिख रहा है 2-3 मंथ्स के आसपास. दैट इज द टाइम व्हेन यू पुट अ रेजिग्नेशन. तब तक नहीं होता है. ओके, सो फर्स्ट अ फिक्स्ड वर्क 2-3 आवर्स. अब ये वर्क उस वर्क के साथ मैच हो रहा है जिसमें आपको एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, देन इट इज वेरी गुड. जो बिजनेस आप बिल्ड करने की ट्राई कर रहे हो
उससे रिलेवेंट तुम्हारा जॉब है 2-3 घंटे का, तो बहुत ही बढ़िया, यू आर वेरी लकी। पर अगर ये नहीं भी हो रहा है तो भी चलेगा, बिकॉज सम कैश फ्लो इज व्हाट योर ब्रेन वांट्स, दैट आई एम नॉट यूजलेस, ये थॉट नहीं आना चाहिए उसके लिए। सो एक्टिविटी कोई भी चलेगा, बट 2-3 घंटे का फिक्स्ड इनकम पहले चाहिए बिफोर जंपिंग इनटू एन एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप में जंप कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि नेक्स्ट 3 इयर्स का प्रोजेक्शंस में क्या कैश फ्लो उससे जनरेट होगा और क्या कैश आउटफ्लो होने वाला है मेरा खुद का। ओके, सो सपोज आई एम अज्यूमिंग के 3 महीने बाद आई एम गोइंग टू सेल 50,000 यूनिट्स एट दिस प्राइस। उसका पूरा कैलकुलेशन चाहिए कि कौन वो 50,000 कस्टमर है जो आप लेने की बात कर रहे हो आपका प्रोडक्ट, एट व्हाट प्राइस पॉइंट, वो कस्टमर रहते कहां है, किस एज के हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। ओके, व्हाट ज्योग्राफी यू वांट टू सर्व, क्या खाली दिल्ली सर्व करना है, यूएई जाना है, यूएई का मार्केट सर्व करना है, सऊदी अरेबिया का करना है। पहले ज्योग्राफिकल स्कोप आपका कितना लिमिटेड है, क्या नहीं करने का है वो पता होना चाहिए, राइट। फर्स्ट लोकेट कि आपका कस्टमर टारगेट मार्केट कौन सी एज ग्रुप का है, क्या फाइनेंशियल लेवल का है और प्रोडक्ट कितना जाएगा। उसके लिए पहले पायलट रन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने सीधा 2 करोड़ का मशीनरी ले लिया ना, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। सो यू हैव टू गो इनटू द मार्केट, स्टडी इट। इसीलिए बच्चे भी जिनके हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, इफ योर चिल्ड्रन आर स्टिल स्टडिंग, सैटरडे संडे उसको किसी कैश काउंटर पे बिठाओ मार्केट में, समझ रहे हैं। 15 साल का, 14-15 साल का हो चुका है, तो सैटरडे संडे वो क्या कर रहा है, उसको कैश काउंटर पे बिठाओ किसी फ्रेंड की शॉप पे, वीकेंड में एटलीस्ट सैटरडे संडे। मोस्टली वॉक इन सैटरडे संडे ही होते हैं जो रिटेल सेल्स होती है। वो स्टडी करेगा, फिर आके उसको आप एज अ पेरेंट यू स्टार्ट आस्किंग हिम कि मार्केट से क्या देख के आया वो जो भी कैश काउंटर पे बैठा है। दिस इज हाउ यू इनकलकेट दोज हैबिट्स। दूसरा, सेविंग्स का हैबिट बच्चों को सिखाओ अभी से। गिव हिम 500 रुपीज एंड देन चेक व्हाट ही डज विद इट, बिना कुछ बताया वो 500 के नोट का क्या किया। पहले वीक में ये देखो, नेक्स्ट वीक उसको थोड़ा इनपुट दो, वापस 500 की नोट देके, राइट। फिर अपना जर्नी बताओ उसको, या ग्रैंडफादर का जर्नी बताओ कि कितने पैसे लेके आए थे, कुछ नहीं था, कैसे सेविंग किया, कैसे फैमिली बढ़ाया, कैसे बर्थ रेट मेंटेन किया है। टेल योर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडमदर स्टोरी टू योर चिल्ड्रन, ठीक है। सेविंग्स वाली जो सिविलाइजेशन है उसी का एंटरप्रेन्योरशिप हो पाएगा, बाकी सबने इंटरव्यू देने समझ रहे हैं। जिसने हर तीसरे चौथे महीने नया प्रोडक्ट बाय करना है वो इंटरव्यू ही देगा, उसके बच्चे भी कोई इंटरव्यू देने का है। दैट्स नॉट द सिविलाइजेशन वी वांट टू बिल्ड। आपका फाइनेंशियल स्टीयरिंग व्हील आप ही के हाथ में होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा एवरीबॉडी इज गोइंग टू बिकम अंबानी, दैट्स नॉट द ऑब्जेक्टिव आइदर। ओके, द ऑब्जेक्टिव इज योर इंडिपेंडेंस। योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मीन्स you decide how many hours will go in the financial activity, not someone else. पैसे कमाने के लिए कितने घंटे काम करना है वो डिसीजन जब आपके हाथ में आता है, that is independence, not somebody else deciding your working hours. तो अगर आप फंस चुके हैं तो एटलीस्ट नेक्स्ट जनरेशन का प्लान करना शुरू करें कि उन्हें ना करना पड़े ये the same thing. Okay, so to your answer, one is bootstrapping जो फैमिली फ्रेंड सर्कल वाला पहला। दूसरा, आप अप्रोच कर सकते हैं इंक्यूबेशन सेंटर्स। एजुकेशन सारी इंस्टीट्यूशंस में आप इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं, so they will mentor you also and maybe help you out with the funding as well. तीसरा होता है कि भाई हमारा जो स्टार्टअप फंड जो प्रधानमंत्री जी की स्कीम्स है, that is one more. Okay, and then after one level of sales
then you can go for जो round ABC type बोलते हैं, that kind of a proper this thing. उसके लिए फिर obviously structured तरीके से pitch बनता है, elevator pitch बोलते हैं उसको, अलग अलग प्रकार के प्रोफेशनल तरीके होते हैं pitch देने के, Shark Tank जैसे platforms भी होते हैं, right? But that's after a level, right? Till then it is bootstrapping, okay? Some banking loans as well work, but that has to be very critically examined and taken, right? आज मैं 50 लाख का लोन ले लिया और सेल्स मेरा 8 महीने बाद होने वाला है, that should not be the case. तो वो वर्किंग कैपिटल के गैप्स भी समझ में आने चाहिए कि साइकिल कैसे घूमता है वर्किंग कैपिटल का. आज लेके बैठोगे तो उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, राइट? दैट शुड नॉट बी द केस. दूसरा, फाइनेंशियल में आपको हमेशा ये समझना है, स्पेशली बिकॉज यू आर लिविंग इन टियर 1 सिटीज, कोई भी बिल्डिंग जो होता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग, उसका वंस इट इज मोर देन 3 फ्लोर्स, 3 फ्लोर से ज्यादा है और 12 साल की उसकी एज हो चुकी है. रिपीटिंग अगेन, कोई भी बिल्डिंग में जहां भी आपका इन्वेस्टमेंट है, रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूं, 3 फ्लोर से ज्यादा है, उसकी 12 साल की एज हो चुकी है, you should be ideally exiting that building within 5 years. Why? उसमें कोई वैल्यूएशन नहीं बढ़ना है. Plots का वैल्यू रहता है, बिल्डिंग का वैल्यू करता है. No. वो तो आफ्टर 10 years ही करता है. हाँ, so after 12 years you just have maintenance. आपका वैल्यूएशन नहीं बढ़ने वाला है. वो 50 लाख का फ्लैट है तो 50 फिर धीरे धीरे नीचे ही आना है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो एसेट में ये चीज समझनी है, क्योंकि कुछ लोग मैं जानता हूँ चिपक के बैठ जाते हैं उस फ्लैट के साथ, राइट? तो दैट अमाउंट गेट्स ब्लॉक्ड. उसी 50 lakhs में यू कैन हैव अ फ्रेश प्रॉपर्टी जिसका और 20 years का लाइफ है, राइट? सो दैट यू गॉट टू अंडरस्टैंड. दूसरा, लैंड नेवर डेप्रिशिएट्स. जैसे आपको पता है कि 500 की नोट पे, राइट, लैंड नेवर डेप्रिशिएट्स. तो जिन्होंने भी वो 500 रुपी का जो भी करना है within a short period of time, obviously it's not going to be one stroke. Dates होंगी obviously 6-8 months, उसके बाद फाइनल डेट आएगी, whatever, पहले वॉलंटरी होगा. बट स्टिल टियर 2 और 3 में जितना जल्दी आपने लैंड बाय करना है, दैट इज आइडियली प्रेफरेबल, राइट? बिकॉज फिर उसका मल्टीपल यूजेज है. मे बी यू वांट टू डू एग्रीकल्चर, मे बी यू वांट टू हैव सम कमर्शियल थिंग बिल्ट अप, व्हाटएवर. But agricultural land ऐसे दिखती नहीं है unless you belong to that power. Each state has a different rule. Okay, so Gujarat doesn't allow. Yeah, even there. So you have to be a farmer status within Gujarat to have. Yes, you have to have a farmer status. या तो फिर वो NA हो चुका होता है फिर, but it is still fertile, so you can have agriculture done despite not being a farmer. ऐसा भी करते हैं कुछ लोग जो NA बाई कर सकते हो if you are not a farmer. Tier 2 की valuation Non agriculture status. But tier, I am from the real estate sector, so tier 2 की valuations are also very high, extremely high. अगर हम land prices देखें, they have multiplied 4 to 5 times. So do you think should we go in now or wait for some period of say consolidation? Because right now even buying a plot say 50 kilometers away from Delhi where we are, it is like 1 lakh rupees a square yard, for example. This is completely an exceptional Delhi national capital. इसके आसपास का भी, so forget about that. But other states certainly, जैसे if I'm talking about Karnavati, Ahmedabad, 50 kilometers outside, well, you can get better rates. Delhi के आसपास. So Temple City, It's a national capital. so Temple City is like Vrindavan में Certainly. Lodha has just entered, but they are selling at 1 lakh rupees a square yard. That's the pricing at which Lodha is selling. Yes. Oh, you have to find out the individual retailers who would like to sell, right? Because they are going to develop in a way and then going to sell. No? Yeah, that makes sense. So, will the central bank digital currencies in India, will they have an expiry date? For example, in some pilot projects with programmable money, which can be used for a specific purpose. So, in India also, will we have some expiry date or something like that?
As of now, I don't see any this kind of a planning with our governance. At least I don't see this with BJP in power. Can the opposition, when they come in power, go for something like that? Possibility. And other countries, Western countries? Other countries certainly are going in this direction, especially the Western. Programmable, not just programmable, they are going to, just like a social credit score kind of thing. They are expressing something which the administration is not comfortable. There could be action on their e-wallet or whatever. सर क्रूड ऑयल की इम्पोर्टेंस आप कह रहे हैं कि 5-6 साल में कम हो जाएगी सर, कैन यू प्लीज? 5 to 7 years, I think credible alternatives would be ready by then. Alternatives would be ready, not deployable, not necessarily deployable. So nuclear? Nuclear certainly looks like retail nuclear kind. Now that retail nuclear, how much? I mean, there would be safety iterations with that model, but that is what certainly seems to be coming. Not green. That means solar should not be taken in, sir? Not green. Solar will certainly be one of the options, but that's not a long-term viable option. Solar doesn't seem to be a long-term viable solution. It's a stopgap for maybe 10-15 years. What about green? Green energy? Green energy, that's what he's asking, solar. So that means NTPC green is out. 10-15 years, stopgap arrangements will still be there. But the final, what looks like for 50, 60, 70, 80 years, looks like retail nuclear. That's what it looks like. Things are already on. मेरा क्वेश्चन था एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जैसे आपने स्टार्टअप फाउंडर्स की स्ट्रैटेजीज के बारे में गाइड किया है, तो उसके लिए क्या गाइडेंस रहेगा? क्या, क्योंकि जैसे जैसे हमारा स्टेटस बढ़ रहा है इंडिया का या भारत का वर्ल्ड लेवल पे, तो व्हाट शुड बी अवर गाइडेंस फॉर दिस एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स? MSME. My understanding for MSMEs is they should be focusing on the 3 corridors. One is that IMEC corridor which goes to Israel and then to Europe. Second is INSTC which goes till Russia. And third one is Chennai Vladivostok. And all these 3 corridors will be successful if Xi Jinping is our main partner, which I believe is the case. ये पीरियड से कब डिफाइन, क्या ये पीरियड का कोई टाइमलाइन है या? For the corridors? For the corridors. Next 10 years. All the corridors would be booming. Established हो जाएंगे. Yes, it will be done. So as I'm saying, all 3 corridors would be booming with Xi Jinping as the main partner. He's not dying. वो जब से आपको सो रहा है वो समझ आ गया है. So whatever business that you want to plan, the route is through Beijing. You're selling this side, but technology, money, everything will come from Beijing. This is what looks like after things settle down. अंकित जी, सर माय क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग. मतलब मैं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट करता हूँ. जो वैल्यूएशंस है मैन्युफैक्चरिंग में, जो आप कहते हैं कि आगे जाके वैल्यूएशन मिलेगी वापस मैन्युफैक्चरिंग को, वो टाइम पीरियड कितना होगा? और जितने मेरे ख्याल से इस ग्रुप में मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको मालूम है वो कितने मिनिमम मार्जिन पे काम कर रहे हैं. मतलब एक टर्नर क्या सैलरी ले रहा है, और आईटी का इसको मैं सॉरी बोल रहा हूँ, कितनी हाई वैल्यूएशन पे काम कर रहे हैं वो टाइम क्या, वो जोन जो है टाइम का वो कितना होगा, मतलब कब तक होगा? पिछले 20 साल से तो मैं वेट कर रहा हूँ. मेरे को पता है कि एक हेल्पर नारायणा एरिया, मेरा नोन एरिया मोती का नारायणा, मेरा ये कर्म भूमि है. तो यहाँ पे एक हेल्पर 12,000 की सैलरी ले रहा है. He works for 12 hours. Directly linked with the collapse of the dollar. So 2029-30, as we know, what we are looking at. So 2029-30, say you start having kind of. Either the margins will increase, or how will get the valuation? Two things are going to happen. One, as Chinese get cut off from Wall Street finance, the Chinese products
costing are going to jump multifold. Okay, which is going to be the first time the Indian entrepreneurs are going to get a level playing field in the world market. Okay. Second, all three corridors would be requiring Indian manufacturing in exchange of whatever energy that we are buying right now from the Gulf. Okay, so one is INSTC जो ईरान से जा रहा है, तो उस रीजन से जो कुछ भी हम बाय कर रहे हैं, एंड द वेस्ट एशिया रीजन, सऊदी अरेबिया, यूएई, दिस रीजन, यहाँ से जितना हम एनर्जी का बाय कर रहे हैं उसके एक्सचेंज में हमारा मैन्युफैक्चरिंग जाने वाला है. विद यूएई बीइंग द गोडाउन, यूएई विल बी द इंडियन गोडाउन फॉर ग्लोबल सप्लाई. ओके, so that is where you need to be. Okay. Sir, एक interesting सा question है. One last question. We listen to your podcast very regularly. In fact, on a daily basis, I am a member of social YouTube channel. Sir, आपने कहा था कि डॉलर जब डिवैल्यू होगा या डेप्रिशिएट होगा तो एनआरआई जो उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी हुई है इंडिया में भी, क्योंकि वो पेमेंट्स डॉलर में कर रहे हैं, तो मान लीजिए 100 रुपए का आज डॉलर है, उनको 100 रुपए देते हैं इंडियन करेंसी में, तो महंगे रेट घर खरीद पाते हैं. जब डॉलर डेप्रिशिएट होगा तो उनके लिए हो सकता है उनको 100 रुपए की जगह 150 रुपए या 200 रुपए देना पड़ जाएगा. उस सिनेरियो में जब इंडियन रूपी एप्रिशिएट होगा तो आपको क्या लगता है सर, रियल एस्टेट प्राइसेस का इक्विलिब्रियम कहां पे जाएगा? बिकॉज आपका डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है, रूपी एप्रिशिएट हो रहा है, तो प्रॉपर्टी प्राइसेस, बिकॉज एनआरआईज के लिए दो ही चीजें होती हैं, गोल्ड या फिर रियल एस्टेट, तो उस टाइम प्रॉपर्टी प्राइसेस में क्या आएगा? आई एम सेइंग दिस बिकॉज 2028 यू आर सेइंग देयर विल बी टिल यू शुड वेट टिल 2028. So, which is why I call these cities as fiat dollar cities. जो NRI remittances से बूम हुआ है, IT सेक्टर की पेमेंट से बूम हुआ है, और डॉलर बेस्ड एक्सपोर्ट से, डॉलर रेफरेंसिंग इनवॉइस बेस्ड एक्सपोर्ट से बूम हुआ है. So obviously this fiat dollar cities need to go down in their real estate prices. मतलब अगर आप खाली पुणे का अगर आप एग्जांपल ले लें तो कोविड के बाद जो 14, 15, 16 ट्रिलियन इन्होंने छापे अमेरिका में, उससे पुणे का रियल एस्टेट ऑब्वियसली वेंट अप, शॉट अप. सो द रिवर्सल इज गोइंग टू बी 5 to 7% इज मिनिमम व्हाट आई एम सेइंग एज अ हिट. बट जब हमारी करेंसी एप्रिशिएट होगी तो रियल एस्टेट प्राइसेस पे कुछ इम्पैक्ट आएगा? I think when that is purely about the purchasing power of who wants to trade with Bharat, right? तो वो लोग फिर परचेज नहीं कर पाएंगे outsiders, right? Indian assets, whereas you would be able to buy out a lot of Western stuff, which is why I keep on telling on Satyology कि 3 rupees का जो मैं बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट के रूपी से आप जाके वेस्ट में चीजें परचेज कर लोगे, ये वो 1-2 साल से ज्यादा टॉलरेट नहीं कर पाएंगे. They will not allow. सर इंडिया में पैनिक सेलिंग नहीं होगा? उसके बाद there will be only restrictive trade, जितना जरूरत का है उतना ही इंटरनेशनल ट्रेड. 3 रुपए आएगा. Since we are talking about devaluing of dollar, तो आपको क्या लग रहा है कि कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है आईटी सेक्टर पर? Like they are outsourcing jobs. I've explained this, that even other than the exchange rate, the fact that कल भी आया है ट्रम्प का कि सिखा के चले जाओ, आओ सिखा के I mean everybody is a fool है. So ये जो मेंटालिटी है जिसमें आगे रेसिज्म की ओर जा रहा है, even if the rate is not there, the work is not going to be transferred. So eventually the companies will have to decide which of, I am saying till 2030 a lot of chunk of operations should shift for those who wish to survive. तो फॉरेन की यूनिवर्सिटीज को समझ में आ गया कि मेरे को सर्वाइव करना है तो इंडियन पेरेंट्स के दरवाजे तक जाना पड़ेगा. They are opening campuses here. But sir, as per you, कोई भी jobs नहीं बचेगी वेस्ट में for the IT sectors.
See, even other than the IT sector, they have to go to the layoff part, because without that, वो prisoner city में अंदर नहीं जाएंगे. And that has to be done before 2020. Before 2020. And you have also mentioned that we also need to learn Arabic as well as Russian. Because of these corridors. And this has to be done before 2020. जितना जल्दी बच्चे जो सीखते ही हैं, आई थिंक स्कूल कॉलेज में फ्रेंच जर्मन ये सब सिखाते हैं. बट नाउ द सिनेरियो हैज चेंज्ड. उनके लिए भी बेटर है, बिकॉज योर मार्केट, योर कस्टमर्स, the teams with which you are going to interact are going to be those. But still the language is not going to be a barrier because of tech. Just one thing, sir. Just one thing. सर, एक मैं चीज नोटिस कर रहा हूँ कि बीजेपी जो है वो बहुत स्लो है, जो फेक न्यूज है उसको एड्रेस करते हैं. तो ये क्यों हो रहा है? जैसे ही सर अभी जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर है, अब उनको ये बोला जा रहा है उनका स्कीम फाइल्स में नाम आएगी. तो सर हम बहुत डिले क्यों करते हैं इस चीज को एड्रेस कर रहे हैं? यही 2024 के इलेक्शंस में हुआ और अब यही जो एक इन्होंने लाइक वोट चोरी में हाल बोल रहे हैं. Well, understand people within the government would not be comfortable with a lot of objectives which the political leaders who are elected have. So despite the intent and the decision making, only a percentage of things are going to be implemented. Because implement करने वाला है वो ये objective के साथ aligned नहीं. एंड सिमिलरली सर जो डिफेंस सेक्टर है उसमें जो हमें टेक्नोलॉजी से अभी तक आ जानी चाहिए इंडिजीनियस, स्टिल दे आर गेटिंग डिलेड. लाइक एम्प्रा बजट वो अब 10 साल और आगे या फिर रफाल में जो हमारा. No, the budget is given. The engine is already under works. So that improvement is happening. The only thing is they are not speaking a lot. So that's okay. Because you don't want to ruffle feathers right now with those kind of defense companies who are already seeing how assertive this government is. So let that be the strategy. As Rajnath Singh said that next year the engine would be ready. Now with that kind of a statement, obviously a lot of defense companies are going to feel a lot of heat, because neither they are shifting to Bharat and Bharat is developing something of its own. So you see the size of business they would lose if they don't dump US early. One last. Yes. जी आप पूछ लीजिए. आप पे भी बस सर एक ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि आप जैसे ये बोल रहे हैं कि 2030 तक 1:3 का डॉलर का रेट आएगा. अभी हमारा जो आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो हमारा जो ICAI इंस्टीट्यूट है वो कोर्सेज चला रहा है GCC के, ग्लोबल आउटसोर्सिंग और अकाउंटिंग. तो उसमें जो मेन स्ट्रेस है वो US के ऊपर है, US अकाउंटिंग के ऊपर है. तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है. नहीं पता उन्हें. myself is in global accounting and giving the services. What I'm observing कि जो वहाँ की CPA firms हैं वो कंसोलिडेट हो रही हैं और वो यहाँ पे आउटसोर्स कर रही हैं. इनफैक्ट गुजरात में आउटसोर्स कर रही हैं. तो हाउ दिस विल वर्क इन फ्यूचर? मतलब यू आर सेइंग कि it is not going to work. It's not going to work. Even for taxation and accounting, it's not going to work. Taxation तो CBDC environment में कितना taxation क्या होगा? हाँ, CBDC में नहीं होगा. कितना compliance होगा? You can understand. Because when I talk to my fellow chartered accountants ना, then they are like they get skeptical. तो आप कह रहे थे ना कि आप ये WhatsApp ग्रुप में पुश करो, तो वो WhatsApp ग्रुप हमें ही पुश कर देते हैं. You are pushed out of the group. We are pushed out of the WhatsApp group. That's the same thing happened with me many times. So that's okay. So this was just. नहीं वो क्लियर है, उनको नहीं पता है. एंड जिनको आप आर्ग्यू भी करोगे दे विल से नहीं तो फिर तो बहुत खराब हो जाएगा. तो बहुत खराब हो जाएगा तो नहीं होगा ऐसा किसने बोला? I don't know what that logic is. सब बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा आप तो. सो जी एक सवाल जैसे इंडिविजुअल लेवल पे. हेलो
You asked already. One at a time. Dhananjay, please sit up. We have to close. I have to go. राम राम जी। अंकित भाई, मेरा एक क्वेश्चन है सबसे पहले कि सनातन उसमें जो विमेन का है, लाइक हम देखते हैं एक मूवी आई थी शिकारा, उसमें दिखाया था कि जो एक डिस्प्लेस्ड कपल था, दे कम बैक टू देयर होम एंड दे वो मुसलमान जो रहते हैं ऑक्यूपेंट है उसमें वो ही दिखाते कि हाँ जी देखिए आपका घर है। और उसमें दिखाया था लाइक इट वाज अ वेरी, मेरे को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया था कि जो विमेन थी वो आराम से टीवी देख रही हैं और मैन है उनको लेके जा रहा है जो ऑक्यूपेंट है, ओरिजिनल ऑक्यूपेंट। तो इट्स लाइक कि मतलब अब उनकी विमेन का वो देखो कि दे डोंट क्वेश्चन देयर हस्बैंड्स, इट्स नॉट अलाउड। बट वो चीज आप ये देखिए कि अगर बॉलीवुड में देखिए कि बॉलीवुड में भी कितना करप्शन है डन बाय मेन एंड दे आर वेरी फैंसी विमेन, दे आल्सो डोंट क्वेश्चन। अब उसको एक आप रिलेट कीजिए जो एक लाइक हम मिडिल क्लास विमेन हैं, बहुत वो इसमें बहुत वो कंफ्यूजन सा रहता है कि नहीं आदमी जैसे कर रहे हैं करने दो काइंड्स, तुम्हें क्या जरूरत है बोलने की, चुप रहो काइंड्स। तो एक कंफ्यूजन है। There are different layers to this. Yeah. What is your question? Agreed with the observation. नहीं, क्वेश्चन यही है कि आई थिंक वहां पर फिर एक लाइक आपने एक बार अपने टॉक शो में कहा था कि नहीं जो हिंदू सनातनी वुमेन है वो अपनी शक्ति भी यूज करती है, नॉट फिजिकल, नॉट इवन एब्यूसिव, बट इट इज द लास्ट दिस थिंग लास्ट दिस थिंग रिजॉर्ट लेफ्ट टू हर काइंड ऑफ अ थिंग। तो मतलब वो था विच इज अंडरस्टूड बाय मी, बट आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग दिस थिंग लाइक शिकारा का जो था और जो बॉलीवुड में भी गलत होता है। माय सेकंड क्वेश्चन इज कि एवरीबडी टॉक्स अबाउट एग्रीकल्चर। I am also interested in something like waste management thing and to actually convert it into something usable. तो उसमें कहाँ से गाइडेंस मिलेगी? जैसे से आपने एग्रीकल्चर के लिए वो बताया, नेम बताया रवि के लिए, और एक बार मोदी जी ने भी कंटेंट क्रिएशन पे पूरा वो होल्ड किया था। So supposing somebody is interested in creating contents of Indian mythology as in games and all, तो उसमें भी कुछ like this is somebody else's like that person is interested कि Indian mythology उसमें कहाँ से guidance मिलेगी, one who can actually guide you, like it's all so scattered। एक तो कंटेंट क्रिएशन था और एक वेस्ट मैनेजमेंट था कि how to go about it। And is there any person one can follow and we'll find out for the waste management turning into a business model, right? Yeah. We'll find out the resource person for it. Certainly I'm not an expert on that at all. Okay. First question जो आपका women वाला है अलग, so there are different layers to this. So let me explain how the biology works. A set of women are, since you mentioned Bollywood, right? So these women are showcasing themselves as women empowerment as well, but still not asking questions to their husbands or still are okay with cheating and stuff like that. हाँ, अभी recent जो आ रहा है काजोल और उसका very bad thing is this. Actually, I'm not. मेरे पास ट्विटर में क्लिप आया था। नहीं, this is something to understand how biologically things work. अभी जब पीछे कोविड हुआ था, सो देयर वाज प्रोटेक्शन फॉर दीज ऑर्फनेज जहाँ पे बच्चे होते थे, लाइक मोदी जी वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट कि यहाँ से, बिकॉज यहाँ से बच्चे किडनैप हो रहे थे एंड दे वर बीइंग ट्रैफिक्ड टू दीज वेल नोन पीपल। So one wonders that you see somebody's mother and somebody's wife and you're like, do they ever question their son or their son? They don't. So let me tell you, women don't question anything to men who has a lot of money. Right. So no. I'm talking about Kajol and those kind of things. So these are the ones who already obviously at the start
suffered because certainly they also come from a family. They also have at least some understanding of values. They have children. Yeah, but understand that their entire circle within which they function, that their social circle, are about women who are victims who have now learned to cheat as well. Because it's just like a dirty pit. And that is okay because for them, men with a lot of money are not supposed to be questioned for whatever reasons, and they try to make it look into cool, and they are dispersing this idea as a cool thing to be, which is what we need to be careful about, because we don't belong to that 0.001% circle. We don't want to, by the way. Because so many people in the views, they are made into heroes. So that is why ancient Bharat, entertainers were kept outside the village. And that's why we need to have our own content, which we can populate, I think. Which is why we need more of content creators on the dharmic side as well, which is not happening. So dharmic, the problem here, where's the gap is? The gap is when you are starting to talk about dharma, we are only restricting ourselves to scriptures and verses. वो पूरा पंडित types, that's the image which then nobody is going to open that video. Okay, वो उसको लग रहा है कि धर्म की बात हो रही है. No, but how dharma translates into each of our domain. If that is the content which is coming, people would be interested to watch it. So basically, yeah, you need more people who connect multiple domains with dharma. Then there is going to be more visibility. After his death, I think the way he was... That was a wipeout of Hinduism from a screen itself. And that was the objective, by the way. So, sir, why Hindu women want the rights for Hindu men? I have never seen it. So, this would be known by those families who are victims of those false cases. If you ask those mothers and sisters, they would certainly agree with what I'm saying. Also, it feels like yes. So understand, it's not as binary as you are thinking. Okay. So today itself, Kerala High Court, the judgment is that a mother can ask for maintenance despite having money from her husband. So this is the empowerment of the other side of women who are on the victim side, who were innocent and still, because of these false cases. So eventually, as I told, it's Hindu women who will bring gender neutrality, not the men. Right. Just 1 second, please. I think जो सवालों की झड़ी है वो तो खत्म नहीं होगी. And what I would request is that he is not leaving right now. So we are going to have dinner. We are going to be circulated around. तो थोड़ा बहुत questions वहाँ के लिए भी रख लो. My humble request is, I know it is going to feel very dissatisfied. अरे वो आए थे, हमने पूछना था, हमने नहीं पूछा. But I think that's not what we should do. What we should do is, let's compile our questions. Let's put it together as a group and motivate him कि अब हमने कुछ tangible कर लिया है, and you come again. And when you come again, this time don't come for 1 hour. This time you come and maybe all of us will go out somewhere. जैसे वो वृंदावन अकेले हो गया है, तो maybe हमको एक ट्रिप करेंगे जो सब जाएंगे इकट्ठे. Then we can always ask questions. We can spend some time together, and it will be much more satisfying, right? So again, as I said right in the beginning, as a family, I did not tweet. Because if I had tweeted, then there would be 1,000 more people. Yeah. So that's why I didn't tweet. Okay. So next time when the preparation is of that size, then we can tweet as well. So what I want to do is, there is a little small chotu surprise, acknowledging the hard work and the number of hours spent by one individual, which I would like to single out. The person doesn't know that I am going to make this announcement. So I'd like to call Neeru on the stage. She made more than 300 phone calls individually to contact people so that everybody knew this was happening. And
as a learner, अभी अंकित जी ने बताया the name of an expert, right, in agriculture. So this is a set of books by him. Thank you, team. And the most important part, अब वो पढ़नी भी पड़ेंगी, नोट्स बना के अगली बार प्रेजेंट भी करनी पड़ेगी. So with this, I'd like to invite Atul to just quickly give a vote of thanks from all our behalf, and we look forward to this being a trailer and actually enjoying a real long movie session of an evening with you again. Hello, good evening everyone. A heartfelt vote of thanks. Good evening everyone. On behalf of Delhi Parivar, it is a privilege to extend a sincere vote of thanks at the conclusion of this wonderful gathering. Today our hearts are truly full. Having more than 170 of us came together reflects the deep bond and shared values that define our Parivar. A special and heartfelt thanks to you, Dr. Ankit Shah, who has travelled all the way up from Ahmedabad to Vrindavan to be with us today. Your presence, insight and warmth have added great meaning to this evening. We are grateful for the time and effort you took to connect with us personally and to strengthen our sense of togetherness. थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं सारे, ठीक है, आ जाओ भाई. अच्छा हमने we would also like to thank Mr. Vijay. So he has done lot of leading the stuff, and he's actually guiding us and also planning the things in one step ahead. So when you are executing something, he's already planned for the next step, what you have to do now. So this is one applause for Vijay. Three cheers for Captain. Hip hip. Hip hip. Hip hip. बहुत अच्छा काम किया सबने. So I think with that, I think we'll close this formal part of the evening. And I would request that the staff here will be there to help. Maybe we can move the sofas back a little bit, create some more space, so that we can start the dinner. We can circulate around, right? And then after that, he would like to leave. It's a long drive to Greater Noida, right? So thank you very much, everyone.